Hello learners, welcome back. In this video, we will uncover the four orientations of firm in international business. So, the four orientations are ethnocentric, polycentric, regiocentric, and geocentric. So, these orientations shape a company's global behavior. By the end of this session, you will fully understand how firms think when they go international. Let's get into it. These orientations are also known as approaches to internationalization of business. So basically, this EPRG framework was developed by Howard Perlmutter in 1969 and later extended by Yoram Wynn and Susan Douglas in 1973. So basically, earlier there were only three orientations, that is ethnocentric, polycentric, and geocentric. This regiocentric was added later by Yoram Wynn and Susan Douglas in 1973. So basically, these orientations influence how companies make strategic decisions and manage their global orientations. This model categorizes the company's attitudes towards international market basically into four orientations. ठीक है? सबसे पहली orientation कौन सी है? Ethnocentric, then polycentric, then we have regiocentric and geocentric. These orientations influence how companies make strategic decisions and manage their global operations. चलिए एक एक करके इन्हें डिटेल में समझते हैं. So the first one is ethnocentric orientation, right? So this is the home country oriented. Okay. In this orientation, the company believes that what works in the home country will work everywhere. ठीक है कि हमारी कंट्री में जो भी हम अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं फॉर एग्जाम्पल वो हर जगह बिक जाएगा विदाउट एनी चेंज. ओके. होम कंट्री प्रैक्टिसेस आर सुपीरियर. Products and marketing strategies are not adapted for foreign markets. Company follow a very straightforward idea. If it sells at home, it will sell abroad also. This helps them avoid extra cost of customization, but it often leads to cultural mismatch. कई बार कंपनी सोचती हैं अपना होम मॉडल ही बेस्ट है, पर ग्लोबली ये अप्रोच हमेशा सक्सेसफुल नहीं होती है. राइट? तो देखिए, दिस ओरिएंटेशन अज्यूम्स दैट कंपनीज होम कंट्री प्रैक्टिसेस एंड मेथड्स आर सुपीरियर. ठीक है? इस ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग क्या सोचती है कि जो हमारी होम कंट्री की प्रैक्टिसेस है वो क्या है, सुपीरियर है, एंड विदाउट एनी चेंज ये हर कंट्री के अंदर हम क्या कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं. ठीक है? देयर इज नो नीड ऑफ कस्टमाइजेशन. कंपनीज बिलीव दैट कस्टमर नीड्स एंड मार्केटिंग कंडीशंस आर मोर और लेस होमोजीनियस. ठीक है? इसके अंदर हम क्या सोचते हैं, जो हमारी मार्केट है वो होमोजीनियस है एंड जो हमारी होम कंट्री प्रैक्टिसेस है they can be adopted as it is in the foreign market also. Right? All functions are planned and carried out from the home base only, with little or almost no difference in product formulation or specification. Right? So आप देख भी सकते हैं यहाँ पर हमारी orientation कैसी रहेगी, home country orientation. Example देखते हैं. Earlier operations of Coca-Cola and PepsiCo in India. So basically, they used American management styles, Western advertising themes, and did not initially adopt to Indian tastes, which caused challenges. So, starting में उनकी क्या थी, होम कंट्री ओरिएंटेशन, कि जब कोका कोला एंड पेप्सिको कंपनी आई तो उन्होंने अपनी ही कंट्री की अमेरिकन मैनेजमेंट स्टाइल क्या करा, यहाँ पर अडॉप्ट करा, और जो कि इंडियन कंज्यूमर्स के अकॉर्डिंग नहीं था, तो उन्हें काफी चैलेंजेस देखने को मिले. सो बेसिकली एथनोसेंट्रिक क्या है, हमारी होम कंट्री ओरिएंटेशन. नेक्स्ट वन इज पॉलीसेंट्रिक अप्रोच. देख सकते हैं आप, ये क्या है, होस्ट कंट्री ओरिएंटेशन. फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक हमारी क्या है, इंडियन कंपनी है, और हम कौन सी फॉरेन मार्केट में जा रहे हैं, यूएस की फॉरेन मार्केट में जा रहे हैं. नाउ इंडियन जो कंपनी है उसके लिए होम कंट्री क्या रहने वाली है,
उसके लिए होम कंट्री रहने वाली है इंडिया, एंड जिस कंट्री में वो जा रही है यूएस, ठीक है, वो क्या रहने वाली है, होस्ट कंट्री। तो इधर पॉलीसेंट्रिक अप्रोच में हमारी जो ओरिएंटेशन रहती है वो कैसी रहती है, होस्ट कंट्री ओरिएंटेशन, राइट। सो बेसिकली here companies recognize that each country is different. They respect local culture, preferences, and business practices. They adapt products, pricing, promotion, management style to suit each country's need. यहाँ कंपनी का सिंपल बिलीफ होता है, when in Rome, do as Romans do. राइट, कि अगर आप रोम में हो तो जैसा रोमन्स करते हैं वैसा ही करो. सो बेसिकली होस्ट कंट्री ओरिएंटेशन. The polycentric approach is a strategic framework used by multinational companies when expanding their operations into the new market. अभी जब हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि मल्टीनेशनल कंपनीज बेसिकली कस्टमाइजेशन फॉलो करती है, ठीक है, लोकल नीड्स को देखती है. सो उस इस पॉलीसेंट्रिक अप्रोच का बेस्ट एग्जाम्पल कौन है, मल्टीनेशनल कंपनीज, राइट. एग्जाम्पल देखिए, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था जब मैं पिछली वीडियो में कि मल्टीनेशनल कंपनीज का एग्जांपल था मैकडॉनल्ड्स. मैकडॉनल्ड्स बेसिकली जब इंडिया के अंदर आया तो उसने क्या देखा कि यहाँ पर ऑल्दो स्टार्टिंग में उसने बीफ बर्गर्स बेचने चाहे, लेकिन उसने देखा कि यहाँ पर तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर वेजिटेरियंस. तो उसने फिर अपने वेजिटेरियन ऑल्टरनेटिव्स क्या करे, लॉन्च करे स्पेशली फॉर द इंडियन कस्टमर्स. सो उन्होंने क्या करा, लोकल टेस्ट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करा. सो दिस इज अ पॉलीसेंट्रिक अप्रोच कि हमारी यहाँ पर ओरिएंटेशन कैसी रहती है, होस्ट कंट्री ओरिएंटेशन. नेक्स्ट इज रीजियोसेंट्रिक अप्रोच. इसके अंदर हमारी ओरिएंटेशन कैसी रहेगी, रीजनल ओरिएंटेशन. In the regiocentric approach, the company does not treat each country separately. Instead, it sees a group of similar countries as one region. जैसे कि हमने क्या कह दिया कि साउथ एशियन कंट्रीज, मिडल ईस्ट कंट्रीज, लैटिन अमेरिका कंट्रीज, यूरोपियन यूनियन. Companies develop regional strategies because consumers in a region share cultural or economic similarities. ये एक बीच का रास्ता है, ना प्योर ग्लोबल ना प्योर लोकल, बल्कि रीजनल थिंकिंग. देखिए, a regiocentric approach involves treating a group of countries with similar characteristics as a single market, developing regional strategies rather than individual country specific ones. This approach is based on the idea that these regions share commonalities that can be leveraged. A multinational company like Coca-Cola, which tailors its advertising and promotional messages for regional audiences like South Asia, recognizing commonalities in consumer behavior. They design promotion campaigns for the whole region, not just one country. So basically regiocentric approach के अंदर हमने क्या देखा कि हमने जो ग्रुप्स हैं वो रीजन के अकॉर्डिंग बनाए, ठीक है, जैसे साउथ एशियन कंट्रीज का एक ग्रुप बना दिया, मिडिल ईस्ट कंट्रीज का एक ग्रुप बना दिया, लैटिन अमेरिका कंट्रीज का एक ग्रुप बना दिया, यूरोपियन यूनियन का एक ग्रुप बना दिया, ठीक है. इसमें क्या होता है, हम सिमिलर कंट्रीज को एक रीजन के अंदर डाल देते हैं, ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन इज, देखिए, जियोसेंट्रिक अप्रोच जो है इसमें कैसी ओरिएंटेशन फॉलो होती है, वर्ड ओरिएंटेशन, right. This is the most advanced mindset. Here the company views the entire world as a single market, right. This approach focuses on balancing global efficiency with लोकल रिस्पॉन्सिवनेस. और ये किस में होता था, ट्रांसनेशनल कंपनीज, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था ट्रांसनेशनल कंपनीज हमने पढ़ी थी, तो उसके अंदर हमने देखा था कि ट्रांसनेशनल कंपनीज ग्लोबल एफिशिएंसी के साथ साथ लोकल रिस्पॉन्सिवनेस पर भी फोकस करती है, राइट. दिस मीन्स दे इंटीग्रेट ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस with
and adapt when necessary. They hire the best talent regardless of nationality. राइट, यहाँ कंपनी का विजन होता है द वर्ल्ड इज आवर होम, कि हमारा वर्ल्ड जो है वो हमारा होम है। यहाँ पर हम बेसिकली ग्लोबल एफिशिएंसी के साथ साथ लोकल रिस्पॉन्सिवनेस पर भी फोकस करते हैं। इन इट्स एसेंस इट्स अबाउट लीवरेजिंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड बाय अडेप्टिंग टू द लोकल मार्केट नीड्स। नाउ इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जो है दैट इज MTV ग्लोबल, राइट। MTV ग्लोबल जो है इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, इट ब्रॉडकास्ट लोकल म्यूजिक इन डिफरेंट रीजन्स, हिंदी पॉप इन इंडिया, चाइनीज पॉप इन चाइना, while maintaining a global brand identity. So, just a second, ये आ गया ना एग्जाम्पल। सो बेसिकली इसका मोटो क्या होता है? थिंक ग्लोबल, एक्ट लोकल। Now there are 4 internationalization strategies जो हम already पढ़ चुके हैं। At the outset, a business typically starts its operation within the borders of a single country, whether it is involved in trading, manufacturing, or providing services. As the business grows, its reach may extend from a local scale to national and eventually to international market. Depending on the scale and area of operations, business can be categorized as multi-domestic, international, transnational, or global. Now, next is difference between these orientations. ये टेबल आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी देगा अबाउट हाउ दीज अप्रोचेस वर्क इन इंटरनेशनल बिजनेस। सो लेट्स गो रो बाय रो। द फर्स्ट वन इज ओरिएंटेशन। आप देख ही चुके हैं एथनोसेंट्रिक में कैसी ओरिएंटेशन रहती है, होम कंट्री ओरिएंटेशन। पॉलीसेंट्रिक में होस्ट कंट्री ओरिएंटेशन, रीजियोसेंट्रिक में रीजन सेंट्रिक ओरिएंटेशन, एंड नेक्स्ट इज वर्ल्ड ओरिएंटेशन इन जियोसेंट्रिक। सो इसका व्यू पॉइंट आप सबको ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि एथनोसेंट्रिक में व्हाट वर्क्स एट होम वर्क्स एवरीवेयर, कि जो हमारी कंट्री में चलेगा सब जगह वही चलेगा। पॉलीसेंट्रिक में हर एक कंट्री को डिफरेंट मानते हैं, कस्टमाइजेशन इसके अंदर आ जाता है, ठीक है, लोकल नीड्स के अकॉर्डिंग जो है हम अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। रीजियोसेंट्रिक में कंट्रीज एक रीजन में जितनी भी कंट्रीज एक रीजन में डिवाइड की जाती हैं, हम ऐसा सोचते हैं कि वो सारी जो है उनका सिमिलर टेस्ट है, सिमिलर प्रेफरेंसेस है। जियोसेंट्रिक में द होल वर्ल्ड इज वन मार्केट, राइट। सो द नेक्स्ट इज प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी। सो एथनोसेंट्रिक में स्टैंडर्डाइज्ड ग्लोबली, नो एडाप्टेशन, कि हमारी जो कंट्री के अंदर है हम क्या करेंगे, सेम प्रोडक्ट हर जगह बेच देंगे विदाउट एनी चेंजेस। पॉलीसेंट्रिक में प्रोडक्ट को फुल्ली कस्टमाइज करेंगे, हर एक कंट्री के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट को कस्टमाइज करेंगे। इन रीजियोसेंट्रिक, प्रोडक्ट मॉडिफाइड एट अ रीजनल लेवल, रीजनल लेवल पर क्या करेंगे, प्रोडक्ट को मॉडिफाई करेंगे। देन जियोसेंट्रिक, अ मिक्स ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एंड लोकल एडेप्टेशन। नाउ डिसीजन मेकिंग। Decision making is a crucial decision making is a crucial difference. Ethnocentric, all decisions come from headquarters, right? Centralized at headquarters, basically जो decision making है वो headquarters जो होती हैं वहीं से लिए जाते हैं, because इसमें क्या होती है, home country orientation. In polycentric approach, local managers in each country decide. Basically, the approach is very decentralized. Third one is regiocentric. रीजनल हेडक्वार्टर्स के पास कंट्रोल होता है। नेक्स्ट इज जियोसेंट्रिक, शेयर्ड डिसीजन मेकिंग ग्लोबली। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट स्टाफिंग। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज स्टाफिंग। देखिए, एथनोसेंट्रिक अप्रोच के अंदर पेरेंट कंट्री नेशनल्स जो होते हैं उन्हें प्रेफरेंस मिलती है। पॉलीसेंट्रिक अप्रोच के अंदर होस्ट कंट्री नेशनल्स को प्रेफरेंस मिलती है।
रीजियोसेंट्रिक अप्रोच में जो स्टाफ है वो रीजनली हायर किया जाता है। देन जियोसेंट्रिक में बेस्ट टैलेंट सिलेक्टेड फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, ठीक है, regardless of the nationality. Next is marketing approach. Marketing also differs significantly, right? So ethnocentric approach के अंदर सेम मार्केटिंग रहती है वर्ल्ड वाइड, राइट? नाउ पॉलीसेंट्रिक अप्रोच के अंदर मार्केटिंग जो है हर एक कंट्री के अकॉर्डिंग हम क्या कर देंगे, कस्टमाइज कर देंगे, और रीजियोसेंट्रिक के अंदर हर एक रीजन के अकॉर्डिंग कस्टमाइज करेंगे। नाउ जियोसेंट्रिक के अंदर ग्लोबल जो हमारी ब्रांडिंग रहेगी विद लोकल एडेप्टेशन। नेक्स्ट इज कोस्ट एफिशिएंसी। इन एथनोसेंट्रिक अप्रोच हाई एफिशिएंसी बिकॉज नो चेंजेस आर मेड, लो कॉस्ट ऑफ एडेप्टेशन। नेक्स्ट इज पॉलीसेंट्रिक अप्रोच, इसके अंदर क्या रहेगा, लो एफिशिएंसी ड्यू टू हाई कस्टमाइजेशन कॉस्ट। नेक्स्ट इज रीजियोसेंट्रिक, इन दिस balanced cost and flexibility. Next is high global efficiency and local responsiveness is seen in geocentric. Yani geocentric companies smartly manage both cost and customization, right? So next difference is sensitivity to local culture. So ethnocentric जो हमारी ओरिएंटेशन है उसके अंदर ये काफी कम रहती है। पॉलीसेंट्रिक में इट वेरी हाई सेंसिटिविटी इज सीन। इन रिजियोसेंट्रिक मॉडरेट लेवल ऑफ सेंसिटिविटी इज सीन। इन जियोसेंट्रिक हाई सेंसिटिविटी एंड ग्लोबल थिंकिंग इज सीन। कल्चर को समझना इंटरनेशनल सक्सेस के लिए असेंशियल होता है, राइट? नेक्स्ट इज बेस्ट यूज्ड व्हेन। So companies choose an approach based on market conditions. In ethnocentric, when global markets are similar, these are used. Home practices dominate. Uniform markets जब हमें मिलती है, right? Next is polycentric. जब हम देखते हैं कि मार्केट्स इतनी ज्यादा डिफर कर रही हैं, ठीक है, कि हमें कंट्री स्पेसिफिक कस्टमाइजेशन लानी पड़ेगी, then we use polycentric approach. Regiocentric, जब when countries within a region share similarities, तब हम कौन सी अप्रोच यूज करते हैं, regiocentric approach. Next is geocentric approach, when building a globally integrated network, ठीक है, तो तब हम कौन सी यूज करेंगे, geocentric approach. So these are the examples. देखिए आपको मैं एग्जाम्पल्स अच्छा दे ही चुकी हूँ। स्टार्टिंग में जब कोका कोला आई थी हमारी कंट्री के अंदर, तो उन्होंने अमेरिकन स्टाइल ही यूज करा था। तो वो क्या था, उनका एथनोसेंट्रिक ओरिएंटेशन थी तब। पॉलीसेंट्रिक अप्रोच में मैंने आपको मैकडोनल्ड्स वाला एग्जाम्पल दिया, ठीक है। नेक्स्ट इज रीजियोसेंट्रिक अप्रोच, अगर कोका कोला साउथ एशिया के लिए एक स्ट्रेटेजी बना रही है, दैट इज रीजियोसेंट्रिक अप्रोच। देन जियोसेंट्रिक में मैंने आपको एमटीवी का एग्जाम्पल दिया। So this is all about today. I hope कि आपको इस टेबल से काफी अच्छे से सारे concepts clear हो गए होंगे। If you found this video helpful, please like, share, and subscribe to our channel for more easy and clear commerce lectures. Your support helps us create more useful content for students like you.